Students, in the previous lecture of structure of atom, we have studied the drawbacks of Bohr model. Now, in today's lecture, we will study about the modern concept of structure of atom, that is quantum mechanical model. How to overcome the shortcomings held by the Bohr models. New model of an atoms were developed. So that development was mainly due to these two things, that is dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle. Now we have already studied about the Einstein has already suggested that light can behave as wave like also and particle like also. Okay, Planck also said the same thing. It has the dual character. So in 1924, de Broglie suggested that as light behave like, exhibits like wave like and particle like properties, all the microscopic materials such as electrons, protons, atoms and molecules, they also have dual character. Means जैसे atoms, जैसे वेव का नेचर, लाइट का नेचर था वेव की तरह भी बिहेव करना और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करना. वेव के नेचर में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बेसिस पे पढ़ा था, और पार्टिकल लाइक नेचर में हम लोग ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थियोरी, उसके अकॉर्डिंग स्टडी किया था. ठीक है. सेम वे डी ब्रॉगली ने भी यही बोला कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, they can shows us both the character, that is wave like also and particle like also. Now how, that we will see. Now according to de Broglie, all material particles in motion possesses wave characteristic. मतलब जो भी material particle मोशन में है, मतलब वो कुछ ना कुछ मूवमेंट शो कर रहा है, मतलब वो वेव का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा. ठीक है. So, according to de Broglie, the wavelength associated with the particle of mass m with a velocity v, मतलब move कर रहा है. So, he said that he has given us the relation that wavelength is equal to h of mv, where mv is nothing but your momentum. mv is nothing but your momentum of the particle. That is denoted by p. v is the velocity, m is the mass, as you know. ठीक है. So, equation क्या मिला आपको कि lambda is equal to h mv, or you can say it is equal to lambda by p, where p is the momentum. So here h is the Planck's constant, v is the velocity and p is the momentum. So the wave associated with the material particles are also called matter waves. उनको क्या बोला जाता है? Matter waves. Now matter waves may not be associated with the electric and magnetic field. Okay. It is mainly neither radiated into space nor emitted by the particles. ठीक है. They require medium for propagation. Matter waves को क्या चाहिए? कोई medium चाहिए propagate करने के लिए. So mainly आपको ये equation मिला. ये equation आपको note down करना है, de Broglie का relationship वाला. ठीक है. So let us see the derivation of de Broglie relationship. The relationship may be determined by combining the mass-energy relation proposed by Max Planck and Einstein. So according to the Planck's, photon of light having energy is associated with the wave frequency. So E is equal to h nu. This is your first equation. And according to the Einstein, mass and energy are related as E is equal to mc square, where c is nothing but the velocity of light. First and second equation. So when we combine these two relation, equation 1 and equation 2, we can write down that h nu is equal to mc square. Okay. Now since we know that nu by lambda is nothing but c, ठीक है, or you can say nu is equal to c by lambda. So substituting the value of nu over here, so hc by lambda मिला, which is equal to mc square. Now cancelling c on both the side, what equation you get? Lambda is equal to h of mc. ये मिला आपको. ठीक है. So this is again nothing but your de Broglie equation. This is your de Broglie equation. M is the mass of the electron, h is the Planck's constant, c is the speed of the light and lambda is the wavelength. Okay. Now the equation is valid for photon and de Broglie suggested that ये आपका photons के लिए था. जब ये दोनों equation को हमने derive किया था वो photons के लिए था. The ray of light.
स्ट्राइक, जो लाइट रे इंटेंसिटी से एक फॉलो होती है उसको हम फोटोन बोलते हैं। तो डी ब्रॉगली ने क्या सजेस्ट किया कि ऑन सब्सटीट्यूटिंग द मास ऑफ द पार्टिकल एंड सी की जगह अगर मैं वेलोसिटी सब्सटीट्यूट करूँ तो दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर मटेरियल पार्टिकल्स ऑल्सो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए, मटेरियल पार्टिकल्स के लिए भी अप्लाई किया। तो सिंपल सी की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच ऑफ एम वी मिला, न्यू मिला, ठीक है। सी ये आपको दिस इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन, दिस इज योर डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। दिस इज योर डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये जो इक्वेशन था वो फोटोन के लिए था। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि हम अगर स्पीड ऑफ लाइट सी को वेलोसिटी से रिप्लेस कर दें तो हमें किसी भी मटेरियल का वेवलेंथ फाइंड करने की इक्वेशन मिल सकती है, ठीक है। सो ही सजेस्टेड दैट wavelength of a particle is inversely proportional to its momentum. mv is what? p, that is your momentum. मतलब wavelength is inversely proportional to its momentum. मतलब अगर wavelength बढ़ रहा है तो momentum क्या होगा, कम होगा, और momentum अगर बढ़ रहा है तो wavelength क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। So justification for the dual nature of electron कि how does it behaves like particle like and wave nature. So let us see पार्टिकल नेचर कैसे बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, दे हैव डेफिनाइट मास, एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज, वी नो दैट। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग फाइंड किया कि एक जिंक का प्लेट लिया सल्फाइड स्क्रीन का तो वो ग्लो करेगा, ठीक है। वो अपने आगे कैथोड रेज में भी पढ़ा है हम लोग ने कि हम उसको कोट कर देते हैं तो अगर कुछ रेज उसमें पास हो रहे हैं तो अगर मुझे वो अगर ग्लो करना स्टार्ट करेगा या फिर उसमें कहीं कुछ रेडिएशन स्टार्ट होंगे, फ्लैश लाइट आएगा, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक आउट हो रहा है। तो हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की। सो दे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन इट प्रोड्यूसेस अ स्पॉट ऑफ लाइट नोन एज सेलेंटेशन प्रोड्यूस करता है। सेलेंटेशन इज नथिंग बट योर सिंटिलेशन, सिंटिलेशन इज नथिंग बट अ फ्लैश ऑफ लाइट, अ स्पार्क, ठीक है। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ईच स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस ओनली वन सिंटिलेशन लाइट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर उस सल्फाइड रिंग पे जाके वो हो रहा है तो मतलब वो फ्लैश लाइट एक पॉइंट ऑफ व्यू में जनरेट कर रहा है। सो दिस हेल्प्स अस टू इंडिकेट दैट सिंटिलेशन एंड देयरफॉर द स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लोकलाइज्ड एंड नॉट स्प्रेड आउट लाइक अ वेव, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जाके वो स्ट्राइक आउट हो रहा है और वहाँ पे फ्लैश जल रहा है। तो जैसे अभी ये एक, जैसे मैंने अभी ये पॉइंट किया तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही आया, तो मतलब इसकी वजह से मुझे क्या पता चला कि इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल नेचर। वो ऐसे वेव की तरह नहीं दिखा कि वो रेडिएट नहीं हुआ फ्लैश लाइट हर एक जगह, ठीक है। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन पास किया और एक जिंक सल्फाइड है तो उधर ही आके ऐसे हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या पता चला, उस स्पॉट की वजह से कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज पार्टिकल लाइक नेचर। नाउ वेव नेचर कैसे पता चला? सो द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मन in 1927 and George Thomson in 1928. Now what have they done? What experimental condition they have created to find out कि आपका ये particles your this dual nature matter can behave as, or you can say wave nature of electron. So what they have done, just pay attention. Davidson and German क्या किया उन्होंने, सब्जेक्ट किया एक इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ टंगस्टन फिल्म, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, उसको टंगस्टन फिल्म से सोर्स ऑफ लाइट टंगस्टन बल्ब ले लिया, ठीक है। क्या किया, टू इन्फ्लुएंस अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सो एज टू एक्सेलरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उसको एक्सेलरेशन करवाया। सो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स वर मेड टू स्ट्राइक अगेंस्ट अ निकल क्रिस्टल, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स प्रोड्यूस हुए, ब्राइट रिंग्स वर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, डिफ्रैक्शन की तरह, ठीक है, रिंग्स प्रोड्यूस हुए उस पर। सो दिस रिंग्स वर कॉल्ड द डिफ्रैक्शन रिंग्स एंड दिस फिनोमिना वॉज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। So this diffraction patterns of electrons by crystals was similar to that observed during the X-rays. X-rays जैसे प्रोड्यूस होती थी ना, उसके जैसे ही सिमिलर ऑब्जर्व किया गया। So we know that X-ray have wave character. Therefore they said that electrons also behave as a wave character.
जैसे आपको एक्सरे का ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक किया गया इस एक्सपेरिमेंट में तो उसका भी ऐसे ही डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला. सो वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि एक्सरे हैज़ अ वेव कैरेक्टर. सो इसके बेसिस पे, ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये बता दिया गया कि इलेक्ट्रॉन भी वेव कैरेक्टर पजेस करता है. So this was the justification for particle nature and wave nature of a electron. Okay, so you have some sort of numericals related to this de Broglie equation. ठीक है. Now question simple. Calculate the wavelength of an electron moving with a velocity of 2.05 into 10 to the power 7 meter per second. Simple equation है. क्या given है आपको? डी ब्रॉगली इक्वेशन यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन एच ऑफ एम वी. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है हमेशा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? 9.11 इंटू 10 to the power -31 kg. एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज 6.63 इंटू 10 to the power -34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. वेलोसिटी आपको गिवन है 2.05 इंटू 10 to the power 7 meter per second inverse. Okay, what you have to calculate? You have to calculate the wavelength. Now using this equation substitute, सारे चीज़ों को substitute करोगे. So आपको क्या मिलेगा कि wavelength is equal to 6.63 into 10 to the power -34 upon 9.11 into 10 to the power -31 kg into your velocity, that is 2.05 into 10 to the power 7. So when you solve it, what you got? That is 3.55 into 10 to the power -11 meters. ठीक है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन यूज करके आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है, अभी चलो ये वाला ट्राई करो. कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट हैविंग वेवलेंथ इज गिवन टू यू एंड वेलोसिटी. मास फाइंड करना है फोटोन का. ठीक है, तो यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे था, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है. फोटोन का फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे? क्या क्या गिवन है आपको? लैम्डा गिवन है, दैट इज वेवलेंथ इज गिवन टू यू. प्लैंक्स कांस्टेंट होता है. वेलोसिटी आपको गिवन है. अकॉर्डिंग अगेन सेम इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच ऑफ एम वी. आपको क्या कैलकुलेट करना है? मास. तो मास के टर्म्स में इक्वेशन क्या बन जाएगा? मास इज इक्वल टू एच ऑफ लैम्डा वी. सब्स्टिट्यूट करो सारे को, दैट इज लैम्डा इज गिवन टू यू 5894 Armstrong, which is nothing but equal to 5894 into 10 to the power -10 meters. ठीक है. नेक्स्ट वेलोसिटी भी आपको गिवन है. वेलोसिटी इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 to the power 8 meter per second inverse. ठीक है. देन वॉट यू हैव टू, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 to the power -34 ले लो यहाँ पे इस केस में. तो 6.6, जहाँ पे उसको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को थोड़ा चेंज करना होगा ना, दे विल मेंशन इट. ओके, दैट इज kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. दिस इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट. सो मास सब्स्टिट्यूट करोगे, सब कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 10 to the power -34 divided by 5894 into 10 to the power -10 into 3.0 into 10 to the power 8. So when you solve it, you get 3.74 into 10 to the power -36 kg में आंसर है सब. तो ये भी आपको kg में मिलेगा. क्लियर? ठीक है. सो नेक्स्ट इक्वेशन आप खुद सॉल्व करोगे. इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the Bohr's orbit, first orbit is 2.19 into 10 to the power 6 meters per second. Calculate the de Broglie wavelength associated with it. लैम्डा कैलकुलेट करना है. h की वैल्यू ले लोगे 6.63 इंटू 10 to the power -34 kg. वेलोसिटी आपको गिवन है, आप लैम्डा फाइंड करोगे. ठीक है. सो ट्राई टू सॉल्व इट. अभी अगर यही आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन के काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पूछा जाए तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला क्या होगा? हाफ
mv², तो उससे भी आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो. Okay, now next is Heisenberg uncertainty principle. Now what is Heisenberg uncertainty principle? As we were all studying about, so far we have been believing that anything can be specified to any desired degree of accuracy. मतलब आप स्पेसिफिकली बता सकते हो कोई भी चीज़ कौन सी डिग्री तक वो एग्जामिन कर सकती है. बट हाउएवर हेजनबर्ग in 1927 put forward a principle. He said that it is impossible or it is not possible to measure simultaneously both the position and momentum of a microscopic particle with absolute accuracy. मतलब आप एक टाइम पे ये नहीं बता सकते दोनों उसकी मास और वेलोसिटी एक पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की नहीं बता सकते हो. माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बता सकते हैं बिकॉज दैट इज विजिबल विथ अवर नेकेड आइज. तो दैट आई कैन से कि हाँ वो यहाँ पे है, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इतने जगह पे आके वो खड़ा है. ठीक है. बट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उसका मास या फिर उसका पोजीशन या मोमेंटम एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बता सकते. या तो आप उसका मोमेंटम बता सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, या तो उसकी वेलोसिटी, या तो उसका पोजीशन. ये आपको हेजनबर्ग ने बोला था. सो लेट अस सी मैथमेटिकली उसने क्या बोला था. मैथमेटिकली दिस लॉ मे बी एक्सप्रेस एज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इंटू डेल्टा पी इज द मोमेंटम, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 4π. ठीक है. नाउ वेयर डेल्टा एक्स इज नथिंग बट अनसर्टिनिटी इन पोजिशन, कि कितने अनसर्टिनिटी आपको पता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 1. नहीं आता तो वापस गो थ्रू करोगे उसको. डेल्टा पी इज इक्वल टू अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम. ठीक है. एंड द साइन दैट इज लेस देन और ग्रेट इक्वल टू मीन्स दैट द प्रोडक्ट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी कैन बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ऑफ 4π. या तो उससे ज़्यादा हो सकता है या तो उसके इक्वल हो सकता है. It can never be less than 4h of 4π. So the sign of equality refers to the minimum uncertainty and is equal to h of 4π. Okay, now on the basis of delta x and delta p, what can I say that uncertainty आप measure कर सकते हो. Means if delta x is small, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड एक्यूरेटली. अगर ये एक्स स्मॉल होगा तो मतलब आप उसका पोजिशन बता सकते हो. और डेल्टा पी अगर लार्ज है मतलब देयर विल बी अ लार्ज अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम. और अदर हैंड व्हाट वी कैन से कि अगर डेल्टा पी स्मॉल है मतलब मोमेंटम क्या है, मेजर कर सकते हो एक्यूरेटली. और डेल्टा एक्स अगर लार्ज है तो वहाँ पे उसकी पोजिशन में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, मतलब आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्या है. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स ही सेड दैट if a position of a particle is measured accurately, there will be more error in the measurement of momentum. मतलब अगर आप पार्टिकल का पोजीशन बताना चाहते हो अच्छे से तो मोमेंटम में एरर होगा ही होगा, और अगर आप मोमेंटम अच्छे से बता सकते हो तो उसके पोजीशन में एरर होगा ही होगा. सो कॉन्वर्सली इफ मोमेंटम इज मेजर्ड मोर एक्यूरेटली द पोजीशन विल बी नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली एज आई सेड यू. ठीक है. अब इसी अबो रिलेशन को जो हम लोग को मिला था उसको मैं इस वे में भी लिख सकती हूँ. जैसे मोमेंटम आपको पता है P इज इक्वल टू एम वी, तो डेल्टा P इज इक्वल टू वॉट, मास इंटू डेल्टा ऑफ V. सो वो इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा x इंटू एम ऑफ डेल्टा V विच इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू h ऑफ 4π. या फिर मैं सिंपल अगर डेल्टा x इंटू डेल्टा V is equal to h of 4π m. This also can be the equation for Heisenberg uncertainty. ठीक है. This also means that the position and the velocity of an object can be simultaneously known with accuracy. ठीक है. This was said by the Heisenberg. मतलब he tried us to explain that कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम दोनों हम साथ में नहीं बता सकते. वेरएज मैक्रोस्कोपिक लार्ज बॉडी ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन मोमेंटम मैं इजीली बता सकती हूँ. ठीक है. सो इज दिस टॉपिक क्लियर टू यू. व्हाट डज ही ट्राई टू सेट कि एग्जैक्ट पोजीशन या फिर मोमेंटम आप साथ में नहीं बता सकते. लार्ज ऑब्जेक्ट्स का तो बता सकते हैं बट छोटे ऑब्जेक्ट्स का नहीं बता सकते. ठीक है. सो न्यूमेरिकल्स आएगा इसके बेसिस पे. कैलकुलेट द uncertainty in the velocity of a wagon of mass 2000 kg whose position is known to be accuracy. ठीक है. सो क्या क्या गिवन है, मास गिवन है,
मास गिवन है, तो मास कितना है 2000 kg. अनसर्टेनिटी इन पोजिशन गिवन है ना, नोन पोजिशन हुज एक्यूरेसी इज नोन टू. सो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मतलब डेल्टा एक्स गिवन है, दैट इज प्लस और माइनस 10m. So according to uncertainty principle, delta x into delta p is equal to h of 4 pi. Okay, so what you have to find out? Velocity. अब velocity के terms में equation अभी just derive किया था. So delta x into m of delta v, which is equal to h of 4 pi. Okay, or you can say delta v is equal to h of 4 pi m delta x. So substitute all the values. 6.626 मैंने आगे के इक्वेशन से जब डी ब्रॉगली वाला किया था तो यहाँ पे 6.63 लिया था, राउंड ऑफ कर लिया था. यहाँ पे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.1416 इंटू 2000 into 10. So when you solve it, you get it 2.636 into 10 to the power minus 39 meter per second inverse. So this way you can find out the uncertainty in position दिया होगा, या फिर uncertainty in आपको momentum find करने बोला होगा. ठीक है, I hope this is clear to you. So this numerical you will solve. Golf ball has mass 40 grams and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. मतलब डेल्टा p यहाँ पे दिया हुआ है, डेल्टा x आपको फाइंड करना है. ठीक है, सो जस्ट ट्राई इट. हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई. I want you to try this. Everyone, you should try it. If you are not able to do it, just then text me कि ma'am we were not able to do this question. So then I will help you out. Same way you have to solve this question also. Table tennis ball has a mass 10 gram and speed of 90 meter per second. If the speed is measured with accuracy of 4%, what will be the uncertainty in the speed and the position? So just try this question, and if you have any doubt, just text me after saying this. Okay, thank you.